we had started off the chapter forest resources and wildlife, forest and wildlife resources, right? And in our previous session, we had understood what is the meaning of forest resources. Then forest resources matlab everything inside a forest, which may be the flora, the fauna, which are important for the ecosystem. हमारा जो ecological balance है उसके लिए, which is very important. Then we had also, according to IUCN, the classification, that is the normal, endangered, rare, vulnerable, endemic and extinct species. We also have read about it. Then we understood that what are the reasons for the depletion of forest. This may be a 5-marker question. There are two kinds of questions which we have often got it from this. That is, what are the uses of forest to us? And second is, what reasons behind the depletion? And there has been a separate question also, which says that the colonial policies, due to the over exploitation during the British period, the forests were cut. Then we have also read about how the destruction of forest also is directly or indirectly connected to the cultural and health loss. उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था that because in if हमारा जो 9th standard में जो chapter था, that was deleted, otherwise you could have correlated it. In that there is one particular passage जिसमें बताया गया था कि उस जमाने में, means during that particular age, जो हमारे tribals होते थे, those who were the tribals, they used to take different kinds of forest products. जैसे पत्ते तो वो यूज करते थे, many of the items were used as a medicine. Then महुआ जो ट्री है उसका जो ऑयल होता था, they consumed it as a food and also for lighting the lamp. Then जो गोड़ होता है, यानी कि जो हम लोग अपने उसमें कहते हैं घिया, तो that was used as a water pot, मतलब उसको अंदर से स्कूप कर दिया जाता था and they used to carry it. तो ऐसे कई जो चीजें हैं that was used by the tribals. And because forest cut हुए, तो वो जो tribals थे, क्या हुआ कि when the British had implemented the scientific forestry in India, तो scientific forestry में they had taken 2 major steps. The first major step was to establish the scientific institute, the Indian जो हमारा forest scientific institute है, it was established in Dehradun. It's right now also there and it is a very large institute. And according to that institute, the plantation of the trees, which was called as scientific forestry, was adopted. उन लोगों ने जो है एक adopt किया scientific forestry. दूसरा, they classified the forest into 3. उन्होंने जो forest है उसको 3 हिस्सों में कर दिया, which you will be later studying in the same chapter also. तो जब उन्होंने उसको 3 हिस्सों में किया ना, तो many of the tribals, जो tribals वहां रहते थे, उन जो वो लोग जो थे, they had to shift over from there. अब because या तो उनको परमिशन लेना पड़ता था, sometimes they had to bribe the guards, and sometimes if they were caught तो they were beaten. तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जिन्होंने अपना ये जो मेन काम था फ्रॉम फॉरेस्ट वो छोड़ दिया था. देन देयर वर मेनी ट्राइबल्स जिनको ब्रिटिश ने क्रिमिनल ट्राइब का नाम दे दिया था. यहाँ पे याद रखना,
क्योंकि ये वाला जो क्रिमिनल ट्राइब वाला जो है ना, दिस आई विल बी ऑल्सो टेकिंग अप इन नेशनलिज्म इन इंडिया। और ये जो क्रिमिनल ट्राइब्स होते थे, इनको जबरदस्ती दे वर फोर्सबली टेकन टू प्लांटेशंस, और वहां पर इन लोगों से जो है बॉन्डेड लेबर की तरह काम किया करवाया जाता था। So many of the people who were indulged in the forest, उनको अपना जो काम था उसको छोड़ना पड़ा. Their culture was snatched. Then women जो पास में रहते थे, पहले तो वो लकड़ियां काटने के लिए, आपने मूवीज में या फिर इन दी स्टोरीज आपने सुना होगा कि एक जंगल था, उसके पास में गांव था, तो लड़की जो है वो लकड़ी काटने जाती थी. जब जंगल कटते चले गए तो द विमेन हैड टू मूव, और जब वो उतनी दूर जाती थी तो उनकी तबीयत भी खराब हो जाती थी. ऑन द अदर हैंड दे वर नॉट एबल टू लुक आफ्टर देयर फैमिलीज ऑल्सो. सो इन दिस मैनर the depletion of forest was also indirectly affecting the cultural values of our country. Then हमने उसको कैसे, how did we try to conserve our forest? See, there is no what we call as direct way, या फिर अगर हम कहें कि हमने ये कर दिया, yes, the forest cover of India has increased, but that increase is very very less to the depletion that we are doing. 33% जो है that should be surrounded by forest, और हम लोग अभी जो है we are only on 27 or 28%. और जिस तरीके से आगे हमारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे मैंने आपको उस दिन एक छोटा सा एग्जांपल दिया था अबाउट द बुलेट ट्रेन, तो दो जो आपका बुलेट ट्रेन है, दैट इज अ मेजर डेवलपमेंटल प्लान, क्योंकि बुलेट ट्रेन होने का मतलब इंडिया इज वन ऑफ द डेवलप्ड नेशंस. Secondly, it will also decrease the time and distance between two areas. तो वो एक बहुत बड़ी चीज है, बिकॉज बुलेट ट्रेन हमारे ऐसे कंट्रीज में होते हैं लाइक जापान है, फ्रांस है, तो इंडिया में बुलेट ट्रेन होना एक अच्छी बात है. बट ऑन द अदर हैंड, how many acres of forest has been cut? How many people who were associated with this forest had been displaced? तो एक तरफ हमारा फॉरेस्ट एरिया कवर हो रहा है, देयर हैव बीन मेनी प्रोग्राम्स जिसमें जो आपके कंपनीज हैं, एनजीओज है, गवर्नमेंट है, they are taking up the pain to increase the forest area, yet there are many ways जिसकी वजह से हम उसे deplete कर रहे हैं. The very first step in India was the Indian Wildlife Protection Act. जब बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट, बहुत सारे कंजर्वेशनिस्ट सबने डिमांड किया, तो 1972 में हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको किया, एंड इसके अकॉर्डिंग एक लिस्ट प्रिपेयर की गई जिसके अंदर देयर वर वल्नरेबल किसको कहते हैं, एंडेंजर्ड किसको कहते हैं, एंड हाउ वी कैन स्टॉप द एंडेंजरमेंट, जिसमें बहुत सारे आपके जो जानवर हैं, द स्पीशीज हैं, दे वर गिवन द लीगल प्रोटेक्शन. ये तो एक था. देन बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, नेशनल पार्क्स, ये एस्टैब्लिश किया गया. हमने 9th में पढ़ा था 14 आपके जो रिजर्व्स थे, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड, एंड 18 सॉरी, पहले 14 था फिर 18 हो गया. दिस वाज टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स फ्रॉम एनी एंडेंजरमेंट. बट इट वाज नॉट ओनली द एनिमल्स. लेटर ऑन आपके दो मतलब कि चेंजेस आए इसी एक्ट में.
And not only the animals but also the insects, the plants have been given the legal protection. Then हमारा जो सेकंड था वो था certain projects. वो था आपका certain projects. यानी कि ये तो आपका एक ओवरऑल एनिमल्स जो है उनको सेव करना था, बट ऑन द अदर हैंड स्पेसिफिकली द राइनोस, द टाइगर्स, दे आर एंडेंजर्ड. उनकी जो स्पीशीज है वो कम होती जा रही है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, ऐसे जो आपके प्रोग्राम्स हैं वो स्टार्ट हुए थे. And I'm very happy to say that yes, I was also very nice part of this tiger project. हमारे स्कूल के अंदर when we were there, तो मेरा मतलब कि I was given this assignment that I had to ask all the students to participate. हम लोगों ने जगह जगह पे posters किए थे, and then we also had एक बड़ा सा जो sheet था उसमें signature डाले थे, and then we had presented it in different areas लोगों को बताने के लिए that tigers should not be poached. तो ऐसे आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको, और अब ये इसका मतलब ये नहीं कि हमें सिर्फ सिग्नेचर करने थे, मीन्स देयर वर मेनी प्रोग्राम्स. प्रोग्राम्स का मतलब वो डांस वाला प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम्स मतलब प्रोग्राम्स मतलब डांस वाला नहीं, प्रोग्राम्स मतलब देयर द गवर्नमेंट हैड इश्यूड सम, उन्होंने कुछ मेशर्स निकाले थे. देयर यूज ऑफ स्किन, जैसे आपका पश्मीना है, देन एक रैबिट आता है, अंगूरा रैबिट. तो ऐसे गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल एक्ट निकाला था अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ओनली, दैट इनसे बनी हुई कोई भी चीज जो है दैट शुड नॉट बी सोल्ड और बॉट. इनफैक्ट एक टाइम हमारे यहाँ पर जो टॉर्टॉइज होते थे, कछुए, उनको पालना अलाउड था, बट नाउ इट इज नॉट, अब नहीं है. दीज आर द स्मॉल मेशर्स. जैसे टाइगर का जो स्किन होता है, पुराने जमाने में जो राजा होते थे वो टाइगर के स्किन को अपने घरों में लगाते थे, तो दैट, देन उनके जो बोन्स होते हैं दे आर यूज्ड फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिसिन, उसको हटाया गया. तो देयर हैव बीन मेनी मेशर्स, क्योंकि एक टाइगर को मारने के पीछे वजह होती है, तो दे हैव ट्राइड टू टेक आउट ऑल दोज प्राइमरी फैक्टर्स जिससे आपका जो टाइगर है उसे ना मारा जाए. एंड आई ऑल्सो शेयर्ड वन स्टोरी विद यू. इट वॉज नॉट अ स्टोरी, इट वॉज माई ओन एक्सपीरियंस. तो वो जो टाइगर्स जो है वो जिस तरीके से दे आर लूजिंग, आजकल आपको पता है इफ यू आर गोइंग टू द वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज यू कैन इवन अडॉप्ट एन एनिमल, बट दैट अडॉप्शन डजंट मीन आप टाइगर घर ले आओगे. इट मीन्स यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग सम अमाउंट ताकि उनकी देखभाल प्रॉपर हो सके. तो ऐसे स्कीम्स भी बनाए गए हैं गवर्नमेंट ने जिससे हम लोग जो है टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर राइनो, इनको बचाएं. द नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स, कॉर्बेट which is one of the most famous in उत्तराखंड, बट अगेन वही है, ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से ये जो टाइगर्स हैं इनका नंबर कम हो जाता है. सुंदरबंस which is बंगाल टाइगर, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, सरिस्का is the one which we have also visited, that is in Rajasthan. Manas Tiger Reserve in Assam, Periyar, it is in Kerala. Yes, ये जो measures हैं इनसे थोड़ा सा तो फर्क आया है. The conservation projects are now focusing on biodiversity rather than on a few of its
मतलब इट इज नॉट ओनली प्रोजेक्ट ऑफ टाइगर, उससे रिलेटेड increasingly even the insects have begun to find a place in the conservation planning in the notification of 80 and 86. Then several hundred butterflies, moth, beetle, dragonfly have been added to the list of protected species. पहले हमारे सिर्फ एनिमल्स थे, बट अब इंसेक्ट्स भी हैं. एंड इन 1991 प्लांट्स वर आल्सो इंक्लूडेड, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो टर्मरिक है विच इज वन ऑफ द वेरी कॉमन, हमारे यहाँ तो ये होता है खांसी है हल्दी का दूध पिला दो, चोट लगी है हल्दी का दूध पिला दो. And this turmeric is used as an antiseptic in medicines. This turmeric is used as an antibacterial in the medicines, and its legal protection is very important. तो इसीलिए some of the plants have also been given this protection. यानी कि अब अगर हम बोलते हैं conservation, तो द कंजर्वेशन इज नॉट ओनली फॉर द फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट से रिलेटेड हर चीज, वो फ्लोरा भी है, वो फौना भी है, वो इवन द इंसेक्ट्स भी है. एज आई हैड ऑलरेडी मेंशन्ड कि हमारे जो ब्रिटिश थे, दे हैड इंट्रोड्यूस अ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री and they also had introduced the classification of forest. ये आपके पेपर का जो है, this is a 5 marker question. It's a 5 marker question that classify the forest this was done at that time, बट अभी भी हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, दे सर्वे करते रहते हैं, एंड अगर उनको लगता है कि दिस पर्टिकुलर फॉरेस्ट शुड बी टेकन इनटू रिजर्व, तो वो उसको रिजर्व कैटेगरी में लेकर आ जाते हैं. अगर उनको लगता है दिस पर्टिकुलर शुड बी गिवन अंडर द विलेज, तो उसको वो खाली छोड़ देते हैं. आपको पता है ये जो फॉरेस्ट एक्ट हुआ था ना, जब व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, there was a very big rebel. इसके खिलाफ एक बहुत ही बड़ा रिबल हुआ था, जिसको हम बोलते हैं बस्तर रिबल. एंड ये बस्तर जो है, दैट इज द प्लेस इन छत्तीसगढ़ जहां पर आपके ट्राइबल्स रहते थे. द ट्राइबल्स यूज्ड टू लिव ओवर देयर. And the government at that time, that is the British, they had classified the forest into 3: reserve, protected and village forest. They had also mentioned some of the tribals as a criminal. तो बस्तर के अंदर जो है बड़े सारे लोगों ने रिबेल किया था. एंड वो लोग क्या करते थे, मिट्टी का ढेला होता है ना, द मड, वो लेते थे, चिल्लीज लेते थे, and they would exchange and they became a part and they tried to attack the government. Ultimately 50%, मतलब कि जितना गवर्नमेंट ने रिजर्व किया था उसमें से सिर्फ 1/3 गवर्नमेंट ने रिजर्व किया और बाकी छोड़ दिया. तो रिजर्वेशन पे बड़े सारे प्रॉब्लम्स भी हुई, बट स्टिल द फॉरेस्ट आर रिजर्व सो दैट वी आर एबल टू कंजर्व. नाउ हाउ डू वी क्लासिफाई? Reserve forest, more than half of the total forest land has been declared reserve. Reserve का मतलब होता है only the government of India has a permission to use the forest resources, and they are regarded as the most valuable as far as the conservation of forest and wildlife are concerned. And it is only the government of India who has. मध्य प्रदेश में है आपके. Protected forest, almost
1/3 मतलब अगर मान लो कि हमारे पास जो है ये फॉरेस्ट है, तो इसका ये वाला हिस्सा आपका रिजर्व हो गया, एंड देन 1/3 आपका जो है दिस इज प्रोटेक्टेड। मीन्स इनमें अगर आपको अंदर जाना है, इट इज नॉट हम, इट मीन्स द पीपल हु want to use those products, they need certain license, and कुछ चीजों को ही वो लोग हाथ लगा सकते हैं, they cannot cut everything। अनक्लास्ड आपका तमिलनाडु वगैरह जो एरिया है, दे आर ऑल आपको नॉर्दर्न ईस्ट एंड गुजरात वाला जो एरिया वो आपका अनक्लास्ड मीन्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज विलेज फॉरेस्ट। दे बिलोंग टू both government and private individuals and communities. This has come in the assertion also. Then आपसे पूछा जाता है कि इन स्टेट्स में जो फॉरेस्ट है वो किसके अंडर आते हैं। रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट are also called as permanent forest, and they are maintained for the purpose of producing timber and forest produce and for protective reasons. मध्य प्रदेश जो मैंने अभी आपको बताया, and this has come in the boards, which state has the largest area under permanent forest, and that's आपका मध्य प्रदेश, which is about 75% of the total। उसका मतलब मध्य प्रदेश में जितना फॉरेस्ट है उसका 75%। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र also have large percentage of reserved of its forest, while Bihar, Haryana, Punjab, Himachal, Odisha and Rajasthan are protected. All northeastern states and parts of Gujarat have high percentage of forest as unclassed forest maintained by the local communities. Kindly learn this. This can be a match the column also, and this can be a question as a part of your fill in the blanks. Means सबसे ज्यादा कहां पर है आपका मध्य प्रदेश, एंड अनक्लास कौन से हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड गुजरात। So this is the main area. Now, if we come to the community, which is one of the question, इसके अंदर जो question हमारा आया है वो है JFM, that's Joint Forest Management. Now, before I start with this particular topic, let me tell you, in India, many of the communities, बिश्नोई community राजस्थान में पिकॉक को प्रोटेक्ट करने में बहुत उन लोगों ने साथ दिया है। Then many of the communities have been against the hunting of deer, black buck, and then इनका पता क्या होता है, अगर आप पकड़े गए तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो बाद में, पहले आपको उनके कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। They are so strict. In many of the areas in Madhya Pradesh, sacred grove, what do they do is, वो लोग कहते हैं कि all the forest, water, ये सब हमें भगवान ने दिया है। So they worship it, उसकी पूजा करते हैं, उनके even festivals होते हैं, and they don't even allow the India का जो मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट है उनके भी सिक्योरिटीज को अलाउ नहीं करते हैं, वो उसकी देखभाल करते हैं। जैसे आपका मैंगो, टैमरिंड, और आपको पता है देयर आर सो मेनी थिंग्स, जैसे हम कहते हैं बैनियन ट्रीज के अंदर जो है वो भूत टंगे हुए होते हैं। इट्स एक्चुअली नॉट, इट्स ओनली टू प्रोटेक्ट दोस एरियाज।
और इस तरीके से मेनी ऑफ द कम्युनिटीज हैव ऑलवेज प्रोटेक्टेड, चाहे वो उसमें से लेते हैं लेकिन वो उसकी प्रोटेक्शन भी उतना ही करते हैं. एंड दैट इज वाई पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लासिफिकेशंस कर दिए थे, बट नाउ गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनको भी अपने साथ रखती है. नॉट इन एवरी एरिया, बट जहां उन्हें लगता है द लोकल पीपल कैन हेल्प देम, दे कीप देम. और उससे क्या फर्क पड़ता है, लोकल पीपल के लिए वो उनका अपना है. गवर्नमेंट तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन लोकल पीपल के लिए इट इज देयर ओन सर्वाइवल. एंड गवर्नमेंट उनको जो है कुछ प्रोडक्ट्स देती है, नॉट एवरीथिंग, बट कुछ प्रोडक्ट्स देती है. एंड वो लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट फायर से ऐसे मतलब कि फॉरेस्ट को बचाते हैं. इनफैक्ट जहां फॉरेस्ट आपके सूख गए हैं, दे हैव बीन ड्राइड अप, दे ट्राई टू रीग्रो देम, उनको प्रोटेक्ट करते हैं. रात को दे इवन गिव दी पैरा देते हैं. And in this manner the government has been successful in conserving the forest using JFM. It's a really very effective one. Conservation strategies are not now new in our country. We often ignore that in India forests are also home to some traditional communities. जो मैंने अभी आपको बताया, there are many people who are actually belonging to them. In some areas of India, local communities are struggling to conserve these habitats along with government officials. मतलब वो लोग जो है, they try. This is because that will secure their own long-term livelihood. For example, first, in Sariska, जो कि दिल्ली के बहुत ही पास में है और बहुत ब्यूटीफुल है. इफ़ यू गेट एनी टाइम आफ्टर अक्टूबर, जब थोड़ा मौसम अच्छा हो तो ज़रूर जाना. द विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन. मतलब उन लोगों ने जो है उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए दे हैव टेकन ऑल द मेजर्स. In many areas, villagers themselves are protecting habitats and explicitly rejecting government involvement. जो मैंने भी आपको बताया. The inhabitants of 5 villages in Alwar district of Rajasthan have declared 1200 hectares of forest as the Bhairav Devi Dakav Sanctuary, declaring their own sets of rules and regulations which do not allow hunting or protecting the wildlife against any outside. उसमें गवर्नमेंट भी वहां अंदर नहीं जा सकता है. Nature worship is an age-old tribal belief based on the premise that all creations of nature have to be protected. Such belief have preserved several virgin forests in pristine form called sacred groves. Sacred groves मतलब भगवान का वो. These patches of large forests have been left untouched and any interference is banned. मतलब गवर्नमेंट भी वहां नहीं जा सकता है, जैसे आपके मध्य प्रदेश में है. Certain societies revere a particular tree. Revere मतलब उसकी पूजा करते हैं, उसको respect देते हैं, which they have preserved from time to time. जैसे the Mundas and Sandal. ये Mundas and Sandals are the communal tribals. ये tribal communities हैं. एंड रीजन वर्शिप महुआ. अभी आपको मैंने महुआ का बता दिया. कदम्ब, कदम्ब इज अ ऑरेंजिश कलर है, उसके इसमें आता है. ट्राइबल्स ऑफ ओडिशा एंड बिहार वर्शिप द टैमरिन, यानी कि इमली, एंड मैंगो ड्यूरिंग वेडिंग्स. टू मेनी ऑफ अस पीपल एंड banyan trees are considered sacred. हम कहते हैं ना कि उनमें तो भूत रहता है. Indian societies comprise
comprises several culture, मतलब एक तरफ से आप कह सकते हो कि ये जो कल्चर है ना, दे आर समवेयर रिलेटेड टू द कंजर्वेशन. हम उसे पुराना जमाना कहते हैं, बट यस, देर आर सर्टेन साइंटिफिक फैक्ट्स and its own set of traditional method of conserving nature in its grave. Sacred qualities are often ascribed to spring, mountain, peak, plants and animal which are closely protected. आप देखोगे ना, तुलसी, तुलसी को हम क्या मानते हैं? तुलसी का विवाह कहते हैं. देन हम लोग किसी किसी माउंटेन पीक को, जैसे केदारनाथ वगैरह है, उसको हम लोग रेवर एज अ abode of Lord Shiva. You will find troops of macaws and langurs, मतलब बंदर. और हम क्या बोलते हैं? ट्यूसडे को और सैटरडे को इनको जो है बिल्कुल नहीं मारना चाहिए. दे आर फेड एज बाय द टेम्पल ऑफ डिवोटीज in and around Bishnoi villages in Rajasthan. Black buck, चिंगारा, नील गाय एंड पिकॉक्स. इसके ऊपर तो पूरा बीकॉम में बीए के अंदर जो है ना, एक पूरा वो है, आपका बुक है, हमारी मतलब वो है एनवायरमेंट के ऊपर. बिश्नोई कम्युनिटीज, मतलब दे आर सो स्ट्रिक्ट कि अगर किसी ने गलती से भी उनके ऊपर एक उंगली उठा दिया ना, उनका द वेरी फेमस ब्लैक बक केस, जिसके वो जो मूवी थी हम साथ साथ हैं, सलमान खान, आई थिंक तब्बू एंड सोनाली बेंद्रे, ये सब फंस गए थे बेचारे, बिकॉज इन लोगों ने तो सोचा था वहां पर आसपास में पिकॉक वगैरह हैं. So this was one of the infamous case, but they take their own rules and regulations. This is the way the communities are protecting their forest, their natural inhabitants. The famous चिपको movement, ये जो चिपको movement है, ये आपका हुआ था उत्तराखंड में. एंड ये था कि एक दिस वॉज, वहां पर गवर्नमेंट जो है इट वॉज गिविंग द उस एरिया को, क्योंकि दैट वॉज पीक एंड मतलब कि बहुत थे, तो उस एरिया को इट वॉज गिविंग टू सम कंपनी. एंड व्हेन द फॉरेस्ट ऑफिसर्स केम फॉर द सर्वे, तो वहां पर दिस वॉज लेड बाय सुंदर लाल बहुगुना. ये जो मूवमेंट है ये सुंदर, एंड जितनी भी आपकी विमेन थी वो सब जाकर जो है ट्री से उन्होंने हक कर लिया खुद को. एंड दे सेड इफ यू वांट टू कट द ट्रीज यू नीड टू कट अस. आपको अगर ट्री को काटना है तो आपको पहले हमें काटना पड़ेगा. मैनी ऑफ देम लेड ऑन द रोड, कई लोग जो है, और ये चिपक गए थे, इसीलिए इसको हम चिपको मूवमेंट बोलते हैं. इन द हिमालयाज हैज नॉट only successfully resisted deforestation but has also shown that community afforestation with indigenous species can be enormously successful. मतलब ऐसे कॉमन लोग, इसमें कोई मूवमेंट नहीं था. इट वॉज जस्ट व्हेन द फॉरेस्ट ऑफिसर्स वेंट एंड दे ऑल रेजिस्टेड, और ये इतना बड़ा मूवमेंट हुआ कि बाद में इट स्प्रेड टू मेनी एरियाज. attempts to revive the traditional conservation methods, जैसे अभी हम लोग कौन सा बीज यूज करते हैं? we are using the inorganic, that is HYV seeds, the seeds which are genetically prepared. लेकिन there are many farmers जो कि बीज बचाओ, यानी कि जो पुराने बीज है हमारे फार्म में हमें मिलते हैं, क्योंकि क्या होता है, जैसे टोमेटोज है, ठीक है, नॉट ऑल द टोमेटोज आर सोल्ड, कुछ खराब हो जाते हैं. एंड वो जो टमाटर खराब हो गए, खराब का मतलब वो नहीं है खराब, इट मीन्स मे बी रॉटन, और इट मे बी वो फंस हो गए, तो इनके जो बीज होते हैं इनको सुखाया जाता है एंड देन द फार्मर्स उन्हीं बीज को नेक्स्ट ईयर यूज करते हैं. दैट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस. मेरे घर आओगे ना तो यू विल फाइंड नंबर ऑफ पौधास यूजिंग ऑल द बीज. मैं तो जो भी काटा बीज लगा दूंगी. ऐसे मैंने एक बार हमारे घर में ऐसे आया था, सेम आया था, तो माय डॉटर हैड बॉट, वो ना सारे पके हुए थे, एंड आई गॉट दिस मच ऑफ सेम, दिस मच सेम के जो बीज थे.
और मैंने क्या किया, उनको मेरे को ना बचपन से शौक है इन सब चीज़ों का, तो आई जस्ट बट इट एंड इट वॉज अ लॉन्ग, इतना बड़ा आया, 3 साल तक, 3 years कॉन्टिन्यूसली उनमें से सेम निकली है. आई हैव द फोटोज ऑल्सो. और वो मतलब वो हर बार मैं सेम निकालती थी एंड दे वर फ्रेश. तो दिस इज, मैं तो घर पे ऐसे वो करती हूँ कि मेरे को तो मम्मी ने मजे मजे में सिखाया था. बट इन द रियलिटी जो आपके फार्मर्स होते हैं वो कहते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग द इनऑर्गेनिक सीड्स वी शुड यूज द ऑर्गेनिक. और वो है आपका बीज बचाओ एंड नवधान्य विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स एंड इकोनॉमिकली वायबल. ये आपका आ सकता है 1 मार्कर. The last but not the least is JFM. Write a short note on JFM. In India, अच्छा अभी तक जो हमने पढ़ा है that is how the communities are protecting the forest and their products on their own. और ये जो JFM है, it is when they are giving their support to the government. In India, JFM program furnishes a good example for involving local communities in the management and restoration of degraded forest. As I said, जो ये communities होते हैं, they have to protect these areas from further fire, further depletion, and government in exchange gives some forest products to them. The program has been in formal existence since 88. When the state of Odisha passed the first resolution for JFM, it depends on the formation of local institutions that undertake protection activity mostly on degraded forest land managed by forest department. मतलब उनको फर्दर कटने से बचाना, जंगल के आग से बचाना. इन रिटर्न इनको क्या मिलता है? देयर आर 2 ways. कुछ जगहों पर तो जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको अलाउ किया जाता टू लिव इन दैट, एंड कुछ जगहों पे दे आर एंटाइटल्ड टू इंटरमीडियरी बेनिफिट्स लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स एंड शेयर इन द टिम्बर हार्वेस्टेड बाय सक्सेसफुल प्रोटेक्शन. उनको थोड़े बहुत शेयर्स मिलते हैं और थोड़ा बहुत सामान मिलता है. सो दिस शोज कि अगर हम लोग लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करते हैं तो देन द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट इज इजी. द क्लियर लेसन्स फ्रॉम द डायनेमिक्स ऑफ both environmental destruction and reconstruction in India is that local communities everywhere have to be involved in some kind of natural resource management. क्योंकि ऐसा इसीलिए बेटा, आप अपने घर की प्रोटेक्शन सिर्फ आप कर सकते हो. आई कैन नेवर प्रोटेक्ट योर हाउस. दैट्स वेरी वेरी. तो आप लोग क्या करते हो? अपने घर के अंदर पर्दे लगाते हो. यू ट्राई टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ विद डिफरेंट थिंग्स. हम अपने घर के अंदर ताला लगा देते हैं, हमने की होल्स लगा रखी हैं. सो दैट इज हाउ यू प्रोटेक्ट योर हाउस बिकॉज यू नो दैट इट इज योर हाउस. सिमिलरली जो कम्युनिटीज होते हैं उनको पता है कि वो उनका है, एंड जब हम उनको इन्वॉल्व करते हैं तो हम अपने फॉरेस्ट को और प्रिजर्व करते हैं. In India is that local communities everywhere have to be involved in some, but there is still a long way to go before local communities are at the center stage in decision making. Accept only those economic or developmental activities that are people centric, environmental friendly and economically rewarding. उनका कहना है कि इवन अगर हम लोगों को कहीं पर फॉरेस्ट को काटना पड़ रहा है तो व्हाट वी नीड टू डू इज, हम लोगों को उन एरियाज को, जब तक वो लोगों के लिए यूजफुल है, इकोनॉमिकली हमारे लिए दैट इज बेनिफिशियल, एंड हम लीस्ट नुकसान पहुंचाते हैं टू द मदर अर्थ, हमें वही एक्टिविटीज करनी चाहिए. बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है. दिस इज बिकॉज
डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में हम लोगों को कहीं ना कहीं वी आर डिप्लीटिंग द मदर अर्थ. 5 years back, yeah, it is around 5 years back, there was a very big program in Delhi, and this program was done on the Yamuna belt. आपका जो नोएडा का जो यमुना बेल्ट, and a very famous person Shri Shri had come over there. जो आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनरी है NGT, उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि ऐसे प्रोग्राम्स को ना किया जाए. क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि वो फॉरेस्ट एरिया है, दैट इज द ग्रीन ट्रिब्यूनल, एंड अगर हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो लोग उस जगह को गंदा कर देते हैं. नेचुरल है, हम वहां पे गाना गाएंगे, खाना भी खाएंगे, खाना खाएंगे तो कूड़ा भी फेंकेंगे, कूड़ा फेंकेंगे उसके साथ हम उल्टी सीधी चीजें भी फेंकेंगे. We don't know what is the meaning of hygiene. It's a reality. Go to the marriages. When we go to the marriages, I really feel so painful कि एक प्लेट होगा उसके अंदर 100 चीजें उठा लेंगे. भाई जितना खाना उतना उठाओ ना. एंड देन दे विल वेस्ट. अब उनको तो लगता है किसी और के बाप का पैसा हमारे क्या जा रहा है, बट दोज वेस्ट आर ऑल्सो वन ऑफ द, मतलब कि हम कह सकते हैं कि हम अपने उसके लिए हम अपने फॉरेस्ट, हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं, क्योंकि हम उसको उठा के फेंक देते हैं. वी डोंट अंडरस्टैंड. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, यानी कि जो हमारे कंप्यूटर्स खराब हो जाते हैं, उनके मदरबोर्ड्स हम निकालते हैं एंड देन वी थ्रो देम इन द एरियाज. हमें लगता है कि हमने उसको थ्रो कर दिया है, लेकिन हमने उसको डिस्कार्ड करने के बाद जिन एरियाज में हम थ्रो करते हैं उस जमीन खराब हो जाती है. इन दिल्ली देयर इज वेरी फेमस वन, ये आपका कूड़े वाला पहाड़ है. इट इज, मतलब कि वहां पर दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर. तो एनजीटी, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो है उन्होंने उस जगह पर उस फंक्शन के लिए मना किया. एंड द फंक्शन वाज ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. 5 दिन चला था. मेरी एक बहुत ही फेमस स्टूडेंट, मेरी हमारे इंस्टीट्यूट की सुकन्या, वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट फंक्शन. व्हाट हैपेंड, गवर्नमेंट ने जो है इश्यू किया कि वी विल नॉट बी, मतलब कि हम जो है इस एरिया को पल्यूट नहीं करेंगे. अब उनका मानना था एनजीटी का कि वो जो एरिया वो यमुना के एकदम साथ में है, तो यमुना भी पल्यूट होगा. दे सेड देयर विल बी नो डिस्ट्रक्शन, वो लोग यमुना को पल्यूट नहीं करेंगे. बट जब फंक्शन खत्म होने के बाद उन्होंने अपने तंबू भी नहीं निकाले थे. दे हैड नॉट इवन टेकन ऑफ द कैंप्स, एंड इट वाज सेड लैक्स ऑफ पेप्सी के जो पेट बॉटल्स थे, दे वर लाइंग अराउंड. खाना वहां पर गिरा हुआ था. तो अभी भी वी नीड स्ट्रिक्ट मेजर्स अगर हम चाहते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज को, चाहे वो फॉरेस्ट रिसोर्स हो, चाहे वो हमारा वाइल्ड लाइफ रिसोर्स हो. अब सोचो कि कोई भी एनिमल उन पेट बॉटल्स को जो मुंह लगाती हैं तो इट इज हार्मफुल फॉर देम. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू, हमें जो ये आपके देख सकते हो लार्ज स्केल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, तो सच प्रोजेक्ट्स जब हम लेते हैं, लाइक आई हैव टोल्ड यू अबाउट द नर्मदा बचाओ, देन आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस बुलेट वन. तो वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि डेवलपमेंट के साथ इट शुड नॉट डिप्लीट द रिसोर्सेज. so this is the chapter forest and wildlife resources. यहाँ पर if you can see, these are the multiple choice. As per the NCERT, what is biodiversity and how it is important, the ecological balance. Then how have human activities affected the depletion of forest, flora and fauna. Then describe how communities have conserved. ये वाला जो question है, this is a board question. और इसके अंदर आपको जो है ये वाला जो पॉइंट्स है ना, जो मैंने यहाँ पर लिखवाया था, ये वाला जो मैंने लगवाया था, ये वाले पॉइंट्स यूज करने हैं. दैट इज आपका जो सरिस्का वाला है, देन आपका जो अलवर में, सॉरी दिस
अलवर वाला जो रीजन है वो, बिश्नोई कम्युनिटी वाला जो है वो सारा आपको इसके अंदर लिखना है। एंड राइट अ नोट ऑन गुड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स कंजर्विंग फॉरेस्ट, इसमें आप अपने भी पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकते। दिस इज व्हाट, then in the MCQ already the questions are given, which of the is not a valid reason, then which of the following conditions do not directly involve community participation, then animals को उनके existence से match करना जो आपका category वाला वो, and reserve, protected and unclassed forest का जो है definition match करना। So this is the entire, but of course we have number of questions besides these questions. ये तो सिर्फ एक part है। We have how joint form JFM has helped in conserving the forest, आपके पेपर में आया हुआ है। Then classify the forest, ये वाला पेपर में आपके आया हुआ है। Then the one जो आपके project tiger है, that has come in the paper. Then how it is directly or indirectly affecting the cultural and हमारा जो मतलब कि फीमेल है उनको उनके हेल्थ को कैसे इफेक्ट कर रहा है वो आया हुआ है। देन हाउ वर द ब्रिटिश पॉलिसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट, वो आपके आया हुआ है। सो देर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस besides these NCERT questions, but this is the entire chapter, forest and wildlife resources.